Hey everyone, welcome back to Decode IIT, where we are discussing concept of motion, and this would be the last lecture for our foundation class. So these are lectures for IIT JEE foundation courses for class 9th, and in this we are discussing physics, and we are discussing the first chapter of motion. I hope the lectures are enriching. We have included a lot of visual animations as well to help you understand concept, because physics is all about visualizing stuff. If you can visualize the things, you can definitely do the questions. But let's move ahead today and do solve some more problems. And if you're new to this channel, do not forget to like, share, subscribe. And also, if you want to enroll in our offline foundation batch, in that is in Raipur. We have center in Raipur, Chhattisgarh, where we conduct offline foundation batches for from starting from class 7th till class 12th. You can contact us at 7724886251. Also, you can email us at info@decodeiitofficial.com, decodeiitofficial.com. And also you can visit our website www.decodeiitofficial.com, and you can call us anytime, mail us anytime. We'll be more than happy to serve you and reply you. Thank you so much. So let's move ahead with our lecture of motion and discuss our first question and let's see what is it about. तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? And by the way, these lectures are both in Hindi and as well as in English, so I'll be using both of these languages, right? तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? What is the first question? A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? A very simple question. जो हमने पढ़ा है उसी पे ही है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक जो बोट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो मैंने आपको बताया कि जब भी मोशन रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0 मीटर पर सेकेंड, राइट? एंड इट सेज दैट इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. द मोटर बोट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट रेट. ये जो दिया हुआ है कॉन्स्टेंट रेट, ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट एसेलरेशन. दिस इज़ एसेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों एसेलरेशन है? आप यूनिट से भी देख सकते हो. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एसेलरेशन की यूनिट होती है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो जज फ्रॉम द यूनिट कि ये क्वांटिटी है क्या. सो दिस इज कांस्टेंट रेट जो ये दिया हुआ है. दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बोट, एंड दिस एक्सेलरेशन हैपन्स फॉर हाउ मच टाइम? 8 seconds. So we have to calculate the distance traveled. So let us try to visualize. Let's say this is the lake which they are talking about, and let's say this is Raju. Like Raju is trying to surf on this with his motorboat. So Raju starts from here. Just a minute. When Raju starts from here, his initial velocity is 0 meter per second, right? And when he starts to row his boat, his acceleration is how much? His acceleration is 3 meter per second square, correct? And he accelerates for how much time? कितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेट करता है? 8 सेकेंड्स के लिए. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जहाँ से राजू ने स्टार्ट किया से लेकर जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुँचा, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. ये डिस्टेंस ही हमको कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है ना? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल. जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताई है आपको, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बताई थी. पहली इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? सेकेंड इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये थी सेकेंड इक्वेशन. और थर्ड इक्वेशन क्या थी? थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट? यहाँ पे u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, और s क्या होता है? s इज़ द डिस्प्लेसमेंट. तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? हमको निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, राइट? हमको यहाँ पे क्या निकालना है? हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट. तो हम कैसे निकालेंगे? हम ये सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब u तो ज़ीरो है ना? u इज़ ज़ीरो, तो ये u इंटू टी क्या हो जाएगा? ये भी ज़ीरो हो जाएगा, करेक्ट? बचेगा क्या? हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज़ हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? एंड देन व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 8 seconds, दैट इज 8 into 8, राइट?
तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 है ना, 8 4 ज़ा 32, 32 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 96, राइट। तो 96 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 96 मीटर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है ना। ट्राई टू विजुअलाइज स्टफ एंड ट्राई टू डू थिंग्स बाय विजुअलाइजिंग, उससे ज़्यादा अच्छे से होता है ना। लेट्स से गुड बाय टू राजू एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर्स पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप्स इन 5 seconds. Another driver going at 3 kilometers per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars and which of the two cars traveled farther after the brakes were applied. Again, a very simple and basic question है ना। आपको लगेगा कितना टफ है, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे करोगे इसको, ट्राई टू डू इट। क्या बोल रहा है इसमें, अब देखो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हमको ग्राफ प्लॉट करना है ना, और उसमें दूसरी यूनिट्स हमको देखनी है। यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर है, यहाँ पे सेकंड्स है। तो अभी के लिए विल नॉट डू थिंग्स, क्योंकि अभी के लिए हम यूनिट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो बस ग्राफ प्लॉट करना है ना। जब हमको कुछ कैलकुलेट करना होता है देन वी कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब हमको कन्वर्ट करना रहता है तो हम, जब हमको कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी रहती है तब वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट्स या फिर जो यूनिट दी हुई है, ठीक है। अभी हमको क्या ग्राफ बनाना है, किसका, स्पीड वर्सेस टाइम का। तो लेट्स ट्राई टू मेक अ ग्राफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से वील मेक ऑन दिस एक्सेस वील मेक स्पीड, और यहाँ पे व्हाट विल मेक इज विल मेक टाइम, करेक्ट। दिस इज 0, दिस इज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, करेक्ट। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर्स पर आवर, तो एक वेलोसिटी कितनी है, 52 किलोमीटर्स पर आवर, correct, this is 52 kilometers per hour, and he applies the brakes and accelerates uniformly in opposite direction. तो जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो जो भी 52 किलोमीटर्स पर आवर उसकी वेलोसिटी थी, उसके ऊपर जब अपोजिट एक्सेलरेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, और ये फाइनली दिस मैन विल स्टॉप, ये जो कार है वो स्टॉप रुक जाएगी, है ना। तो 52 किलोमीटर्स पर आवर से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट साइड लग रहा है। और यही वो बता रहा है कि जब उसने ब्रेक लगाया तो उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन लगा, और जो कार है वो 5 सेकेंड्स में स्टॉप हो गई। तो हम यहाँ पे 5 सेकेंड्स भी लिख लेते हैं, है ना। लेट्स से दिस इज 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में वो स्टॉप हो गई, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, मतलब 0 हो गई वेलोसिटी, है ना। तो 52 किलोमीटर्स पर आवर से, और ये क्या दिया है, यूनिफॉर्म है, ये एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को डायरेक्टली हम किससे जोड़ देंगे, टाइम वाले ग्राफ से, क्योंकि क्या है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आएगा, यूनिफॉर्म नहीं होता तो ऐसे कर्व्ड आता है ना, बट ये यूनिफॉर्म है तो इसीलिए वी कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दिस 52 किलोमीटर्स पर आवर टू 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली वेलोसिटी जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर से कितनी चली गई, 0 चली गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया इसने 5 सेकेंड्स का, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेट्स से दिस इज ए। अब दूसरा अनदर ड्राइवर, लेट्स से अनदर ड्राइवर का क्या है, बी है, लेट्स से अनदर ड्राइवर इज बी, ठीक है। तो ये जो बी वाला ड्राइवर है ये कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, 3 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से ये चला रहा था, उसने भी ब्रेक लगाया, एंड ही अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली, वो धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा है, एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। तो ये कितने सेकंड में स्टॉप हुआ, ही स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। सो लेट्स से 10 इज समवेयर हियर, 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसने भी ब्रेक लगाया, इसने ब्रेक लगा के कितने में पहुंचा, ये 10 सेकेंड्स में पहुंचा, राइट, यहाँ तक चला गया। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, मतलब बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसकी 3 किलोमीटर पर आवर से कितना हो गया, 0 हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ट्रैवल्ड फार्दर का क्या मतलब है, हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कि जब ब्रेक लगा, है ना,
तब से लेकर जब तक वो बॉडी रुक गई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट व्हाट, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो कैन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट हियर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए का हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कितना आएगा, दैट वुड बी द एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, लेट्स से ये वाला एरिया होगा ना, पूरा ये वाला एरिया। तो दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इज नथिंग बट 5 सेकेंड्स इंटू हाइट कितना है 52 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। इसमें यूनिट्स क्या है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, बट हमको तो सिर्फ ये बताना है ना कि कौन ज़्यादा है, हमको ये थोड़ी बताना है कितना है। तो कौन ज़्यादा में तो हमको बस कंपेयर करना है। तो ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा ए का डिस्प्लेसमेंट। अब सिमिलर तरीके से हम बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। कितना आएगा बी का डिस्प्लेसमेंट, हाफ बेस कितना है 10 सेकेंड्स का, है ना। दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 10 इंटू हाइट कितना है 3, राइट, यही है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ सेम है, यहाँ पे 5 इंटू 52 है, यहाँ पे 10 इंटू 3 है, ये लगभग 30 के आसपास आएगा। ये कितना आएगा, ये 250 के भी ऊपर आएगा, है ना। तो कौन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा, पहला वाला। जो पहला वाला है ए, मतलब जो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड वो ज़्यादा होगा जब उसने ब्रेक लगाया से लेकर जब तक वो रुक नहीं जाता। समझ में आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब एक और हमको ग्राफ दिया है, व्हाट इज दिस ग्राफ सेइंग, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको दिया है 3 ऑब्जेक्ट्स का, ए बी एंड सी। तो 3 ऑब्जेक्ट्स का हमको ग्राफ दिया है, दैट इज ए बी एंड सी। Now we have to study this graph and answer the following questions. Let's see what are the questions. So what we'll do is we'll change the pointer because this is we'll change it to let's say black. We'll do it black. Great. तो अभी क्या बोल रहा है, ये ग्राफ है, तो ये 3 का ग्राफ दिया है, 1 is B, 1 is C and 1 is A, करेक्ट। अभी क्या बोल रहा है, which of the 3 is traveling the fastest? A, B और C में सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है। सबसे फास्ट कैसे बताओगे, वेलोसिटी से, स्पीड से, है ना। स्पीड से ही बताओगे, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे तेज़ चल रहा है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही तो होता है। तो अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे कम टाइम में तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, राइट, सही है। तो इसमें डिस्टेंस तीनों का अगर हम देखें तो तीनों का डिस्टेंस सेम है, बी सी और ए, तीनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, दिख रहा है ना। तीनों का डिस्टेंस लगभग सेम है, तीनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, जो कम टाइम लेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, है ना। जो कम टाइम लेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो सबसे कम टाइम इन तीनों में कौन ले रहा है, सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, बी ले रहा है ना। इसको नीचे लेके आओ सबको, यहाँ से ट्राई टू प्रोजेक्ट इट डाउन, यहाँ पे आया, सी यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया, करेक्ट, राइट। तो क्या हो गया, तो B सबसे कम टाइम ले रहा है, हमने देखा कि B यहाँ से यहाँ तक ही है, B सबसे कम टाइम ले रहा है, फिर C ले रहा है और फिर A ले रहा है। तो अगर मैं स्पीड्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, सबसे ज़्यादा स्पीड B की है, फिर C की है और फिर A की है, ठीक है। तो विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, B इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या ये तीनों कभी मिलेंगे साथ में। तो ये तीनों कब मिल सकते हैं साथ में, जब डिस्टेंस भी सेम हो और टाइम भी सेम हो। मतलब सेम टाइम पे तीनों कब मिलेंगे, जब ये तीनों ग्राफ्स इनके इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना, तभी तो मिलेंगे। सेम पोजीशन पे और सेम टाइम पे हो तभी तीनों मिलेंगे। तो ऐसा कभी हो रहा है क्या कि इन तीनों, ये जो 3 लाइन्स हैं ये आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ऐसा कभी हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा कभी। क्योंकि देखो B और A इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, C और A इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, B और C इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो B और C मिलेंगे, B और A मिलेंगे, C और A अलग अलग मिलेंगे, बट कभी A B और C साथ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हो गया कि ऑल ऑफ द 3 नेवर मीट, राइट। तीसरा क्या बोल रहा है, हाउ फार हैज C ट्रेवल्ड व्हेन B पासेस A। तो जब B A को पास कर रहा है, मतलब जब B A को, मतलब B और A साथ में है, मतलब साथ में मिल गए, तो B और A साथ में कब मिलेंगे बता दो, यहाँ पे, है ना। B और A साथ में कब मिल रहे हैं, जब B का ग्राफ
और ए का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। तो बी और ए का ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, इधर, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है? हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। व्हेन बी पासेस ए, तो कितना डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? सी ने। तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो लेट्स सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया व्हेन बी पासेस ए। तो बी ए को कब पास कर रहा है? इतने टाइम पे। ये जो लाइन है, ये टाइम की लाइन दिखा रहा है हमको कि यहाँ पे इस टाइम पे बी ने ए को पास किया। अब इस टाइम पे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहाँ पे, दिस इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी। तो दिस इज यहाँ पे बेसिकली ये अराउंड 8 आ जाएगा, है ना, दिस इज नथिंग बट 8। तो 8 के आसपास ये आ जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि बी ए को कब ट्रैवल कर रहा है? इधर कर रहा है। दिस इज अ प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 8। समझ में आना क्या कर रहे हैं? तो बी ए को कब मिल रहा है? यहाँ पे। इस लाइन को मैंने नीचे किया, ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? सी को इधर इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे इस टाइम पे कितना डिस्टेंस सी ने ट्रैवल किया है? सी ने ट्रैवल किया है 8, दिस इज 8 किलोमीटर्स। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इसमें। हमने क्या किया? बस हमने ये देखा कि बी ए को कब मिल रहा है। बी ए को मिल रहा है इस लाइन पे, इस टाइम पे, और इसी टाइम पे सी कहाँ पर है? सी यहाँ पर है ना, जहाँ पे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, सी वाले ग्राफ को, ये वहाँ पर है। तो दिस इज नथिंग बट 8 किलोमीटर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिमिलर। हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो इसका क्या मतलब है? हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड व्हेन बाय द टाइम इट पासेस सी। तो बी सी को जब मिल रहा है, बी सी को कब मिल रहा है? बी का ग्राफ ये है, सी का ग्राफ ये है, तो बी सी को कब मिल रहा है? यहाँ पे, है ना। तो बी सी को कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो इस टाइम पे, है ना, इस टाइम पे जब बी सी को पास कर रहा है, तो हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड, तो बी ने कितना ट्रैवल किया है? बी ने इतना ट्रैवल किया है, दिस इज समथिंग हेयर, यहाँ पे कुछ आएगा। तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली 4 में देयर आर 7 डिविजन्स। तो ऑन एन एवरेज ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 2 हैं डिविजन्स इसमें। तो 8/7 आ जाएगा, 4 + 8/7, दैट इज़ नथिंग बट अराउंड 7 1 7, इट इज़ नथिंग बट अराउंड 5। तो ये 5 के अराउंड आ जाएगा यहाँ पे जब बी सी को पास कर रहा है। दिस इज समवेयर हेयर, है ना, दिस इज समवेयर हेयर। तो ये जो है, ये नथिंग बट दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 5, है ना। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 5। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बी ने जब वो सी को पास कर रहा है? हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी इज 5 किलोमीटर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? नथिंग बट 5 किलोमीटर्स। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट लेट्स फर्स्ट चेंज द पॉइंटर। राइट, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। तो लेट्स ड्रॉप दिस बॉल, लेट्स ट्राई टू ड्रॉप दिस बॉल, है ना। तो लेट्स से दिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, कितना हाइट है ये? इज द हाइट ऑफ 20 मीटर्स, राइट, यहाँ पे ग्राउंड है ना। दिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर्स इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो एक्सेलरेशन किस साइड है? नीचे के साइड है। मोशन किस साइड हो रहा है? नीचे के साइड हो रहा है। तो जिस साइड मोशन होता है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड, जब वो ड्रॉप हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि जब ये ड्रॉप होने वाली थी तब उसका कुछ रेस्ट पे थी, है ना, अभी रेस्ट पे थी। जब ये ड्रॉप हो रही थी तो ये रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगी तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? ये कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी? तो वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। इस केस में, पूरे केस में डिस्टेंस कवर कितना होगा? 20 मीटर्स का, राइट। कितना डिस्टेंस कवर होगा? 20 मीटर्स का। तो हम कौन सी इक्वेशन मोशन यूज़ करेंगे? v² = u² + 2as। यहाँ पे u 0 है तो ये 0 हो जाएगा। v² = twice of acceleration, that is 10 into
एस दैट इज 20, ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 20, तो वी क्या आ गया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितने वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा नीचे, 20 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस? कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा। करेक्ट, लेट्स मूव अहेड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन, फाइंड हाउ फार डज अ कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये यहाँ समझना, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। सो लेट अस एनालाइज दिस ग्राफ। क्या बोल रहा है ये ग्राफ, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसा है, जीरो से स्पीड स्टार्ट हुई, बढ़ना 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 स्टार्ट हुई 4 सेकेंड तक, 4 इनफैक्ट 6 सेकेंड्स तक ये स्पीड हमेशा इंक्रीज हो रही है, दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंक्रीज हो रही है। हमको बताना है हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो 4 सेकेंड कहाँ पर है, ये है, दिस इज अ 4 सेकेंड। सो जस्ट अ मिनट, दिस इज अ 4 सेकेंड लाइन है ना, ये है 4 सेकेंड की लाइन, करेक्ट, यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जो ये बॉडी है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, यही बताया था मैंने आपको। ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये वाला पूरा एरिया, ये हमको देगा डिस्टेंस। बट ये थोड़ा सा कर्व्ड है, आपको दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा ही कर्व्ड है, ज़्यादा नहीं है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, एक ट्राइंगल ले सकते हैं। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली एक ट्राइंगल ले सकते हैं, है ना, जस्ट फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पे इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम एक ट्राइंगल ले सकते हैं। ऑल्दो ये करेक्ट एरिया हमको नहीं देगा, बट हम उतनी अभी कैपेबिलिटी में नहीं है कि हम इस आर्क का एरिया कैलकुलेट करें, हमको उतना दिया भी नहीं हुआ है। तो हम इसको एक ट्राइंगल के तौर पे अप्रॉक्सीमेट करेंगे और हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस इज़ नथिंग बट 4, 4 इंटू हाइट, हाइट इज़ नथिंग बट 6, ये है ना 6, तो ये कितना आ जाएगा 12। अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस कवर्ड वुड बी 12 मीटर्स। अगेन दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व्ड है, आपको दिख रहा होगा, है ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कर्व्ड, तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज 12 मीटर्स, करेक्ट। अभी क्या बोल रहा है कि शेड द एरिया, एरिया हमने शेड कर दिया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या यहाँ से लेकर 6 तक, क्या यहाँ से लेकर 6 तक यूनिफॉर्म मोशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है और बढ़ भी रही है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं है। कर्व्ड जब भी होता है तो हमने क्या पढ़ा है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, करेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी, तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ से है, 6 से लेकर बाकी 10 तक या आगे तक उसका स्पीड हो जाता है कांस्टेंट, इसकी स्पीड हो जाती है कांस्टेंट, दिस इज समथिंग हेयर, ये कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है, एंड हेंस द मोशन इज यूनिफॉर्म। आर वी क्लियर, द मोशन इज यूनिफॉर्म, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। नाउ लेट्स डू दिस अनदर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, पेन का कलर भी चेंज नहीं हो रहा, या स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। तो ऐसा आपको केस बताना है जिसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन तो क्या हो, कांस्टेंट हो, बट वेलोसिटी ज़ीरो हो। कैसे हो सकता है ऐसा, 2 एग्जाम्पल बताओ इसके, एक नहीं 2 बताओ, एक पूछा ना 2 बताओ। एक तो एग्जाम्पल ये होगा, जब भी हम बॉल को फेंकते हैं ऊपर, जब भी हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, जब मैक्सिमम हाइट चली जाती है बॉल की, तो क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो फिर बाद में फिर से नीचे आती है ये। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर थी, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, और एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली लगता रहता है नीचे की तरफ, है ना, तभी तो वेलोसिटी 0 होती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जब आप ब्रेक मारते हो, है ना, जब आप ब्रेक मारते हो, ब्रेक तो नहीं बोलेंगे, लेट्स से कि आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, है ना, उसके ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो क्या होगा, ये बॉल जो है या जो भी है, ये पहले
वेलोसिटी से ज़ीरो वेलोसिटी होगी, फिर ये फाइनली इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, है ना। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बॉल फेंकने का एग्जाम्पल फेमस है, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन तो है बट स्पीड यूनिफॉर्म है। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा सर्कुलर मोशन में होता है ना, हमने पढ़ा था। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये बट स्पीड जो होती है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है ना। स्पीड इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन तब भी लगता रहता है, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सर्कुलर मोशन, करेक्ट, सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसमें भी सेम ही है, यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है और जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है या स्पीड इस तरफ है, तो यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है ना। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ही है हमेशा, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन एकदम सेंटर की तरफ होगा, और टेंजेंट और जो सेंटर है ना, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द टेंजेंट इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स, राइट, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये। तो अगेन this motion is what, this motion is uniform motion, sorry, in this motion, not uniform, in this motion acceleration is perpendicular, समझ में आ गया, acceleration is perpendicular, correct. Now let's see the very last question. क्या बोल रहा है ये लास्ट क्वेश्चन, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. तो क्या है, लेट्स से दिस इज अ अर्थ, लेट अस विजुअलाइज अगेन, विजुअलाइज करते हैं, ऑल्दो हम बिना विजुअलाइजेशन के भी कर सकते हैं, बट विल विजुअलाइज थिंग्स बिकॉज दिस विल मेक अस अ गुड फिजिशियन मतलब कुछ नॉट फिजिशियन, सॉरी, फिजिसिस्ट। तो फिजिसिस्ट जो होते हैं वो हमेशा चीज़ें विजुअलाइज करते हैं, है ना। तो फिजिक्स अगर आपको समझनी है तो ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स एज मच एज यू कैन, भले ही सिंपल कंसेप्ट क्यों ना हो। तो लेट्स से दिस इज अ अर्थ, है ना, लेट्स से दिस इज अ अर्थ एंड वी हैव अ सैटेलाइट, राइट, दिस इज अ सैटेलाइट, करेक्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग कि अर्थ रोटेट कर रहा है और सैटेलाइट भी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, करेक्ट, सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है। तो ये सैटेलाइट यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहीं पे वापस भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे एक सर्कुलर ऑर्बिट में, इस सैटेलाइट के पूरे एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसका रेडियस कितना है, अर्थ का हमको रेडियस दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस कितना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस है अर्थ का 4250 किलोमीटर्स, ठीक है, कितना है 2250 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या बोला है कि ये रेडियस है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व द अर्थ। तो पूरी अर्थ को, अच्छा सॉरी जस्ट अ मिनट, ये रेडियस अर्थ का नहीं है सॉरी, अर्थ का रेडियस नहीं है ये है इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, मतलब जो सैटेलाइट यहाँ सेंटर ऑफ अर्थ से है, तो ये जो रेडियस है इस पूरे पाथ का, ये जो पाथ में मूव करा इस सैटेलाइट ने, उसका रेडियस दिया हुआ है, सो सॉरी, इस पूरे पाथ का रेडियस दिया हुआ है, कितना है ये रेडियस, ये रेडियस है 42250 किलोमीटर्स, करेक्ट, ठीक है। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है जो अभी आपने देखा, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट अभी आपने देखा, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में अभी ये मूव कर रही है, इसका जो रेडियस है दैट इज दिस 42250 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हमको इसकी स्पीड निकालनी है, ये जो स्पीड से ये मूव कर रही है इसकी हमको स्पीड निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे इसकी स्पीड, बहुत ही सिंपल है, जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हम निकाल लेंगे। तो सर्कुलर जो ये जो पूरा सर्कल है, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, नथिंग बट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, दैट इज इक्वल टू 2πr, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इज 42250 किलोमीटर्स। अभी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने टाइम कितना लिया है 24 आवर्स, किलोमीटर्स यहाँ आवर्स। तो व्हाट वुड बी द स्पीड, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज 2 इंटू 22/7 ले लेते हैं इसको, इंटू 42250 डिवाइड बाई 24, करेक्ट। 2 1 2, 2 2 4, 7 नहीं जाएगा ये, 2 6 12, 2 11, राइट, 6 6 36, 6 6 sorry not 6, it would be 7, 6 7 42, 0 6 4 24, 5 में से 4 क्या 1
10, 6 ones are 6, then again it will come out to be 40, 6 is 36, फिर ये चलता रहेगा ऐसे, है ना. तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज इट विल टेक सम टाइम. तो इसका एग्जैक्ट लेट अस कैलकुलेट 2 इंटू, मैं इसको 22/7 को 3.14 ले रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ मोर एक्यूरेट वैल्यू. तो आपको बस ये करना है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम करना है 2 इंटू 3.14 इंटू 42250 डिवाइड बाई टोटल टाइम दैट इज़ 24 आवर्स. ये कितना आएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 42250 डिवाइडेड बाई 24. दिस विल कम आउट टू बी, तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, 11,055.4. Calculated speed if it takes 20 किलोमीटर्स पर आवर. दिस इज किलोमीटर्स पर आवर. उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी सैटेलाइट की, 11,000 लगभग ऑन एन एवरेज 11,000 किलोमीटर्स पर आवर. बाप रे, 11,000 किलोमीटर्स पर आवर. अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो सही किया है हमने सब कुछ. ये जो डिस्टेंस है ये 2πr होगा पूरा, और इसको ट्रैवल करने में उसको 24 आवर्स लगते हैं, है ना. तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 11,000 कितनी हो जाएगी स्पीड, 2πr डिवाइडेड बाय 24. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी डू क्वेश्चंस ऑफ मोशन. आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे. लेट अस रिवाइज कि मोशन क्या होता है. मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजीशन, है ना. चेंज इन पोजीशन को मोशन बोलते हैं. जब भी पोजीशन चेंज हो रही होती है बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, राइट. इसको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं. ये मोशन जो है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है डिपेंडिंग की वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंज कर रही है ना. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये हमने देख लिया. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, करेक्ट. एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, करेक्ट. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म, मूविंग एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस. तो ये जो इक्वेशंस हैं जो हमने मोशन की पढ़ी, दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम ये इक्वेशंस नहीं लगा सकते, ठीक है. कौन कौन सी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट. इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट. समझ में आया. सो दिस इज इट, है ना. Thank you so much for listening to this series very patiently. For full foundation course, you can enroll in our foundation course online or offline. Both are available for you. सब में हमने इसी टाइप से ही लेक्चर्स कवर किए हैं थ्रू एनिमेशंस, थ्रू डिगिंग ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स एंड मेकिंग श्योर कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आए, राइट. एंड बहुत सारे चैप्टर्स हमने इसमें कवर किए हैं. वी आर ऑल्सो कवरिंग सम पार्ट ऑफ 11th क्लास एज वेल फॉर CBSE बोर्ड्स, ताकि 11th में ही आपको एक IIT प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म मिल सके. एंड यू आर एबल टू जस्ट रिवाइज व्हेन यू गो इन 11th. सो प्लीज़ enroll for the foundation course. It will help you a lot, right. And if you want to enroll in our offline centers, you can contact us at 7724886251, or you can mail us at info@decodeiitofficial.com, decodeiitofficial.com. And please like, share, subscribe to our YouTube channel, and log into our website www.decodeiitofficial.com. Although we have a lot of free courses as well, but we are running foundation courses for 7th till 12th, so you can definitely check that out. Thank you so much. I'll see you in the next lecture. I'll be coming out with more such series, and thank you so much for being there with us in the series. I'll see you in the next one. Bye bye, take care, work hard and study hard. See you next time.